Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember the standard caveat that we always give, that we don't address company-specific queries. The numbers that you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ वी रवि कुमार। Government launches Ayushman Sehakar scheme to assist cooperatives playing an important role in creation of healthcare infrastructure in the country. Domestic equity benchmarks settle around 1% higher. Sensex closes above the 40,000 mark, while the Nifty ends above the 11,850 levels. And Asian markets rise amid hopes of a US fiscal package before the US presidential elections next month and expectations of a coronavirus vaccine by the end of this year. और शुरुआत आज की पहली खबर से कर लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है। श्री तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एनसीडीसी केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएगी। Well, let's look at the second story that we are covering. Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today said that capital expenditure, or CapEx, or as some people call it, CAPEX, by central public sector enterprises, CPSCs, is a critical driver of economic growth and need to be scaled up for the financial years 2020-2021 and 2021-2022. She said this while addressing a video conference with secretaries of the Ministers of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Coal, along with the CMDs of 14 CPSCs belonging to these ministries. The minister reviewed the capital expenditure of CPSCs in the financial year. Today was the fourth in the ongoing series of meetings that the finance minister is having with various stakeholders to accelerate the economic growth in the background of COVID-19 pandemic. The CAPEX target for 2020-2021 is 1,15,934 crore rupees. That's slightly above 1 trillion rupees. While reviewing the performance of CPSCs, the finance minister asked the concerned secretaries to closely monitor the performance of CPSCs in order to ensure the capital expenditure to the tune of 75% of the capital outlay by the end of the third quarter of the financial year 2020-2021 and make an appropriate plan for it. Mrs. Sitharaman expounded that more coordinated efforts are required at the levels of Secretary of concerned ministries and CMDs of CPSCs to achieve the CAPEX targets. While mentioning the significant role of CPSCs in giving a push to the growth of the Indian economy, the Finance Minister encouraged the CPSCs to perform better to achieve their targets and to ensure that the capital outlay for FY 2020-2021 is spent properly
and within time. The minister said that better performance of CPSEs can help the economy in a big way to recover from the impact of COVID-19. The CPSE's CAPEX review is carried out jointly by the Department of Economic Affairs and the Department of Public Enterprises. तो इसी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। तो यामिनी, ये जो केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनका जो है इस तीसरी तिमाही तक उनको तीन चौथाई उनको खर्च करने के लिए कहा गया है, पूंजीगत व्यय करने के लिए कहा गया है। तो इस कदम से आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ और गति मिलेगी अर्थव्यवस्था को? जी बिल्कुल। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती हैं या कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है उससे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर एक बेहतर असर होता है। कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए गए हैं। वैसे ही निवेश के द्वारा अगर जो है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए और रिकवरी लाई जाए उससे एक दूर तक का असर नजर आता है। Let's go to our first caller of the day. Arun is online with us from Delhi. Arun, welcome to Market Mantra. Please ask your question to Yamini. Arun, you're live with us. अपना सवाल पूछें. Yamini, good evening. I have a very simple question. That the Sensex is only on 30 companies, and out of these 30 companies, only the few companies at the top, at the peak, they show the movement. It's not a broad-based movement of Sensex. Why can't we increase the number of companies too, which can cover Sensex? Why not consider 50 companies do not represent the entire country, and Nifty 30 companies do not represent the country? Thank you. Well, it is an index which is a reflection of how the markets are moving, and thereby on the basis of the market capitalization, a select few companies are taken to form that index. We have broader indexes which range from 30 to 50, like you have Nifty, and then you have BSE 200, and then you have indexes which also go in for sectors like BankX or the others, which are a reflection of the different sectors and the movements in the different companies in the stock market. So you do get a little idea about how the markets are moving when you look at different indexes. But to just gauge as to how the market is moving, one specific index, which is the Sensex or the Nifty, is taken. And also, Arun Saab, there is a index available in India called the S&P 500, which is largely mirrored on the US S&P 500, and you can even buy mutual funds and ETFs based on that, although it's not very popular right now. Let's go across to our second caller, Govinda from Bina. Govinda, welcome to Market Mantra. जी गोविंदा जी, हेलो। लगता है गोविंदा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में तेजी से प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 40,000 के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 11,850 के स्तर को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.12% की वृद्धि से 449 अंक बढ़कर 40,432 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.94% की बढ़त दर्ज करके 111 अंक चढ़कर 11,873 पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.58% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.43% की बढ़त में रहे। My namesake Ravi Jain from Mumbai is online with us. Ravi, welcome to Market Mantra. Hello. Yeah, you're live with us. Go ahead, ask your Hello? question. जी रवि जी, सवाल पूछिए अपना। Hello. We can hear you. आप सवाल पूछें रवि जी। Hello. रवि जी, we can जी। hear you. Hello. हाँ, आप अपना सवाल पूछिए रवि जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है। अच्छा, यामिनी जी से मेरा क्वेश्चन है कि जो मार्केट में वोलेटिलिटी है ड्यू टू ऑफ दिस इलेक्शन ऑफ यूएस और ड्यू टू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वोलेटिलिटी? मार्केट वॉलेटिलिटी के काफी सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन जो अभी माना जा रहा है कि जो वॉलेटिलिटी या मूवमेंट अभी
देखी गई है या पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई है सेंसेक्स में, वो इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यूएस स्टिमुलस आने की उम्मीद है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि नया कोविड वैक्सीन ईयर एंड तक आ जाएगा, और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि Q2 के जो रिजल्ट्स होंगे वो शायद बेहतर हों देन दी एस्टिमेटेड लेवल्स। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी नजर आई है सेंसेक्स में। पर और भी कारण होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आना जीडीपी के ऊपर या आईआईपी के ऊपर, या मॉनेटरी पॉलिसी आना, और डोमेस्टिक कारण भी होते हैं, जैसे एफआईआई की मूवमेंट्स होती हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है वॉलेटिलिटी पे। Our regular caller from Delhi, Satish Kumar, is online with us. Satish, welcome to Market Mantra. हाँ जी, नमस्कार जी रवि जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम से मेरा सवाल ये है, मैडम मैं जानना चाहता हूँ, अभी कुछ सालों से ना हमारे देश से जो फॉरेन डेट है, विदेशी कर्जा, वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगा है। जैसे 2015 में 53 लाख करोड़ था, वो अब 2020 में 100 लाख करोड़ हो गया। वैसे तो दूसरे देशों में भी बहुत ज्यादा कर्जे, जैसे यूएस पे 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 22 ट्रिलियन है, लेकिन हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 10 ट्रिलियन के करीब हो गया। तो मैडम क्या हम जितना भी कमाते हैं सारा वो ब्याज में जाता जा रहा है? ये मैडम बताइएगा क्या कारण है। और पिछले हफ्ते मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि वो 1911 से 1936 तक हमारी इकोनॉमी कितनी थी, वो मैडम अगर पता कर लिया हो तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद जी। जहाँ तक एक्सटर्नल डेट लेने की बात है, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि सरकारों को पैसों की आवश्यकता होती है डेवलपमेंट के लिए। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारें इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाती हैं। एक्सटर्नल डेट जब तक सस्टेनेबल होता है तब तक लिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि जो एक्सटर्नल डेट है उसको कम से कम रखा जाए। पिछले कुछ सालों में एक्सटर्नल डेट को डिक्रीज भी किया गया था, लेकिन क्योंकि जो है देखा गया है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मुश्किलें हो रही थी फंड लेने की, तो एक्सटर्नली उन्होंने फंड भी उठाए हैं। जहां तक आपका जीडीपी का सवाल था, जीडीपी 1000 US बिलियन डॉलर से कम थी, और अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक करके एक वेबसाइट है, उस पे 1870 से लेकर के अब तक की इंडिया की जीडीपी है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। जी, अब सुभाष फोन लाइन पर हैं मुंबई से। हेलो हेलो। जी हाँ, सुभाष जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। मैडम से। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सुभाष जी। हाँ, सवाल पूछिए। मैडम। हाँ मैडम, वो मेरा सवाल IEPF के बारे में है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है ना, व्हेन सम डिविजन रिमेन्स अनपेड, इट इज ट्रांसफर्ड टू IEPF एंड शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफर्ड। I want to know how long they will remain with IEPF, and what will happen if the company declares some bonus shares or right shares during that period. जी, आपका सवाल किसी कंपनी के शेयर्स जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ने एक्वायर कर लिए हैं उसको लेकर है, और डिविडेंड जो IEPF में चले गए हैं। जी, जो डिविडेंड्स होते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में जाते हैं, और जिनका एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं जो है पैसा क्लेम किया जाता है उनको ट्रांसफर किया जाता है। और प्राइमरीली उनका जो यूज होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो भी गतिविधियां इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में लगाई जाएं उनके लिए उनका यूज होता है। गोविंद फ्रॉम मध्य प्रदेश इज ऑनलाइन विद अस। गोविंद, वेलकम टू मार्केट मंत्र। अपना सवाल पूछें सर। नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। हमारा सवाल ये है, ये हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में बिकता है वो करीब 10 रुपए यहाँ से महंगा होता है दिल्ली से। हमारे यहाँ 90 रुपए है, दिल्ली में 80 रुपए है। वो एक देश एक टैक्स एक, लेकिन हमारे यहाँ तनख्वाहें जो है बीना में जो करीब 3 गुना कम है दिल्ली से। तो ये क्या हमारे सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी टैक्स ज्यादा है? ये कौन इतना बड़ा टैक्स चार्ज करते, जबकि हमारे घर के पास में रिफाइनरी है तो भारत अफवान की, वही तेल बनता है और हम लोग देते 90 रुपए, दिल्ली वाले 80 रुपए। तो ये तो कोई वो बात नहीं हुई लॉजिकली, इकोनॉमिकली। ऐसा क्यों है मैडम? ये क्यों इतना टैक्स बढ़ा के हमारे को चार्ज कर रहे हैं जबकि तेल हमारे यहाँ बन रहा है, रिफाइनिंग हमारे यहाँ। जी, जो पेट्रोल है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, इसलिए एक टैक्स नहीं है पूरे कंट्री में। डिफरेंट स्टेट
वैट और जो सेंट्रल ड्यूटीज हैं उनको मिलाकर के आपको पेट्रोल अवेलेबल कराती हैं, इसलिए स्टेट वाइज आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे पेट्रोल की कीमतों में। सेम नेम डिफरेंट फॉर्म। गोपाल फ्रॉम मुंबई ऑनलाइन विद अस। गोपाल साहब, वेलकम टू मार्केट मंत्र। अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम मेरे दो सवाल है। पहला तो ये बैंकिंग के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ने जो 5 लाख का इंश्योरेंस किया कवर, ये आपके हिसाब से कहाँ तक जायज है? जबकि लोग अपने खून पसीने के पैसे बैंक में रखते हैं, सारे पैसे की क्यों नहीं ये सुरक्षा देते? ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि सारे पैसे की सुरक्षा दी जाए ताकि लोग बेफिक्र आदमी पैसे जब बैंक में डालते रहे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये मार्केट के बारे में। इंडेक्स देखिए अपनी जहाँ पे है, पहले जो मार्च में जहाँ थे वहां तक लगभग पहुंचने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो इसमें जैसे वो पहले ही था, जैसे जो मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती थी, अभी भी वैसे ही है। मिड कैप स्मॉल कैप आज जो 27,000 इंडेक्स जब गई थी, वो बहुत सारे स्टॉक उसके नीचे चले गए हैं। तो ये किस तरह की ट्रेडिंग है? गवर्नमेंट को खाली फॉरेन इनफ्लो से मतलब है? जो बड़े बड़े कंपनी है आज भी उसके फॉरेन इनफ्लो मिलता है उनको, तो बाकी स्टॉक से कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही मार्केट में बर्बाद होता है। ये किस तरह का ट्रेडिंग है? जी, आपका पहला सवाल इंश्योरेंस को लेके है, जो बैंक्स में दी जा रही है हर एक डिपोजिटर को। अगर बैंक सेल करता है तो उसे 5 लाख तक की जो है रकम मिलेगी, या जितना उसके अकाउंट में था उतना मिलेगा, जो भी कम होगा। कोशिश की गई है कि डिपॉजिटर्स को ये इंश्योरेंस इसलिए प्रोवाइड की जाए ताकि उनमें एक जो है भरोसा जगे बैंकिंग की तरफ कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो ऐसी स्थिति आती है तब ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई का सुपरविजन है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहती है, फोर्टनाइटली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, जिसमें देखा जाता है कि बैंक अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। अगर कोई भी बैंक ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की जाती है अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होता, और अगर जो है उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाया जाता है। कोशिश की जाती है कि बैंक को रिस्ट्रक्चर किया जाए या मर्जर्स या एक्विजिशंस के द्वारा उस बैंक की स्थिति को सुधारा जाए। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, सरकार ट्रेडिंग नहीं करती। इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर में, लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में ट्रेड करें। और ज्यादातर मिड कैप से माना जाता है कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए जो है कम लोग उसमें निवेश करना पसंद करते हैं। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखें तो रैली आई थी बीच में, लेकिन अभी वो रुक गई है और जो है थोड़ा डाउनफॉल नजर आया था आज की स्थिति को देखें तो। पर ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जहां पे भी मार्जिन नजर आते हैं, लोग वहां पे निवेश करते हैं और सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। Let's take a detailed look at the stock market since Gopal had asked about the stock markets. The domestic equity benchmarks today closed around 1% higher amid mixed global cues. Key indices gained mainly due to a rally in bank stocks. The Sensex closed above the 40,000 mark while the Nifty settled above the 11,850 level. The BSE Sensex climbed 449 points or 1.12% to 40,432. The Nifty 50 index added 111 points or 0.94% to 11,873. On the other hand, the broader market at BSE also went up but underperformed the Sensex. The BSE mid cap index gained 0.58% and the BSE small cap index appreciated 0.43%. The market breadth was positive. On the BSE, 1490 shares rose and 1170 shares fell. A total of 157 shares were unchanged. Asian stocks advanced amid hopes of a fresh stimulus package in the US before the presidential election and expectations of a coronavirus vaccine by the end of the year. Our next caller is from Mumbai. Pattu, please go ahead and ask your question. You're live with us, sir. You can go ahead and ask your question. हेलो। Yeah, please go ahead and ask your question. नमस्कार, मैं मुंबई से बात करता हूँ जी। मेरे दो सवाल है। एक सवाल है कि पूछें सर। प्रॉस्पेक्टस क्या रहेगा? आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, दोबारा पूछें अपना सवाल। आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए।
जॉन कुकरी और कैसे उसका प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप किसी बेहतर लोकेशन से अगर कॉल करें, हमें दोबारा ट्राई करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वी कांट हियर यू क्लियरली साहब. प्लीज ट्राई टू प्रॉब्ली गो टू अ बालकनी वेयर वी कैन हियर यू क्लियरली. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. Yamini, there's the caller Gopal from Mumbai who had earlier asked about his constant litany. I think Gopal is stuck with some mid-cap and small-cap shares for the last 2.5, 3 years, and they just don't seem to go up. We saw a high of around 42,273 at the beginning of this year before coronavirus struck, and now we seem to be almost 96% of that level. We've already reached almost 41,000. Is this time for profit taking? Do you anticipate there'll be some profit taking? And if somebody has made, because anybody who entered the market at around 26,000 would probably have a 50-60% gain. These are people who are known as Robin Hood investors famously. So if they have those kind of gains, would you recommend that they book their profits and then wait for better levels to re-enter the market? Well, the markets are likely to be on a positive front only because the economic recoveries are on a continuous process. However, one cannot rule out the fact that many of the investors may like to book their profits, those who invested at the low levels of the markets and are seeing the markets go up at the present levels. So there would be profit booking by many investors, and there can be days where the market might suddenly pull down to a lesser number of, let's say, a lower points which are there. So we would see profit booking that would take place in times, but then continue to remain invested may be a better option rather than booking a profit at the moment. जी, और मुंबई से सीए पट्टू हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं. जी पट्टू जी, सवाल पूछिए अपना. क्या सवाल था? हेलो. जी हाँ, हेलो. हाँ, देखिए मैं मुंबई से बात करता हूँ. मेरा सवाल है कि जॉन कुकरी ये कौन सी कैसी कंपनी है, उसका प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा? कंपनी का नाम दोबारा बताएं प्लीज. जॉन कुकरी. जोआनस कुकरी. हाँ, जॉन कुकरी. जॉन साहब, आप एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, और इस प्रोग्राम में हम जनरली स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं. तो अगर आपको कोई जनरल सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं. जनरल अभी क्या, अभी चलिए कोई बात अगर आती है उसके बारे में आती. अगर आप कुछ पूछना चाहें तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट द एशियन मार्केट टुडे. विशाल जी, रवि, एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं. एशियाई बाजारों में आज तेजी रही. अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव से पहले आर्थिक पैकेज की उम्मीदों और इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीदों से एशियाई शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा. वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ने से निवेशकों ने एहतियात भी बरती. जापान के निकेई में 1.1% का उछाल आया. हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% चढ़ा, तो वहीं सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% की मामूली बढ़त रही, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% के नुकसान में रहा. यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखा गया. फ्रांस के कैक में 0.2% की मामूली बढ़त रही, जबकि लंदन के FTSE 100 और जर्मनी के डैक्स ने 0.3% की गिरावट देखने को मिली. Yamini, there is a question that a lot of our listeners often ask here is that why are the Asian markets and even the Indian markets so happy if the US announces a fiscal stimulus? What is the correlation between these? Well, automatically it does indicate that there is an accommodative stance that is the US taking, and there is likely to be a better recovery in the overall world economies with the US taking one of these stances for the economic stimulus. Let's go to our next caller from Mumbai. Kumar is online with us. Kumar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. गुड इवनिंग सर. Good evening. मैडम के लिए पूछ रहे हैं, डेथ फंड बोले तो क्या है मैडम? म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं आप? डेथ फंड बोले तो क्या है? ठीक है. डेट म्यूचुअल फंड. व्हाट इज अ डेट म्यूचुअल फंड, यामिनी? डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका जो कॉर्पस है वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. डेट सिक्योरिटीज होती हैं जो कंपनीज लोन लेती हैं, उसकी जो सिक्योरिटीज वो बनाती हैं उसको डेट सिक्योरिटीज कहते हैं. और जब उसमें निवेश करते हैं
तो उन्हें डेट फंड्स कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज की भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं। Let's now look at the rupee. The rupee today depreciated marginally by 2 paisa to close at 73 rupees and 37 paise against the US dollar. The domestic unit fell even as the American dollar weakened against other leading currencies. The dollar index, which gauges the greenback strength against a basket of 6 other leading currencies, declined 0.46% to 93.25 in intraday deals. Let's go across and look at another very important commodity, that's oil. And oil prices today fell as concerns over surging coronavirus cases globally dampened prospects for a demand recovery. While Libya planned to boost output further as the OPEC member tried to revive its energy industry after months of blockade. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.90 per barrel, while WTI crude prices were around $40.90 per barrel. How do you see the outlook for the oil market, Yamini? Well, the demand is picking up as the economies are recovering. It is estimated that the OPEC would bring about some cuts. With supply surpluses from different other areas, they might keep the oil at a lower level till the time the demand does not reach to the pre-COVID levels. जी, हरियाणा से हमारे कॉलर हैं जगबीर सिंह फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी जगबीर जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ और 15-20 लाख रुपए में लगाना चाहता हूँ, तो गारंटीड प्लान के बारे में मेरे को प्लीज बताइए। जी जी, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरटीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन स्कीम्स भी हैं जो एक गारंटीड जो है रिटर्न्स देती हैं। And apart from this, a lot of times people are offered something which is called a guaranteed scheme, Yamini. Should people be skeptical about such claims that companies make, because the names that you've taken, these are the guaranteed schemes available in India. Anything else would not be guaranteed. Well, it's believed that yes, the government schemes which are offered, the post office schemes that are offered are guaranteed. Similarly, by the central government, if any scheme is offered, it is a guaranteed scheme. But whereas when corporates offer, they cannot guarantee any return because their returns are not, it's not certain, and they are dependent upon the business uncertainties that are there. So automatically nobody can guarantee a return. Even a mutual fund cannot guarantee a return to any investor because they're investing into the market. राइट। इनफैक्ट जगबीर जी ने जो पूछा उनको हो सकता है कोई किसी प्राइवेट कंपनी ने गारंटी स्कीम की बात कही हो, तो ऐसे किसी गारंटी से उन्हें सावधानी रहना चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो ही गारंटी कर सकती है, बाकी जगह गारंटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यानी अगर आज शेयर बाजार के प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो आज सरकारी बैंक इंडेक्स में तेजी देखी गई और निजी बैंकों के इंडेक्स में भी तेजी रही। तो सरकारी बैंक के शेयरों में जो तेजी आई है, ये बैंकिंग शेयरों में जो तेजी आई है, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या ये बैंकिंग शेयरों में तेजी बनी रहेगी? जी, Q2 अर्निंग्स की बात करें तो एक उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। जो देखा जा रहा है कि अगर कुछ रिजल्ट्स जो है जिनका असर पड़ा है बैंकिंग क्षेत्र में, उसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। और जो ओवरऑल मॉनिटोरियम को एक्सटेंड नहीं किया गया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग की स्थिति ज्यादा सुधरेगी। ओवरऑल जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि कितना स्थिति सुधरेगी। कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उससे भी स्थिति सुधरने से जो है जो उछाल देखा गया है वो फाइनेंस सेक्टर में या बैंक सेक्टर में देखा गया है। जी, और अब कार्यक्रम में समय हो रहा है समाप्त करने का। तो यामिनी, आप डॉक्टर यामिनी कार्यक्रम में आप शामिल हुई और हमारे श्रोताओं के आपने सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू यामिनी। बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Government plans Ayushman Sehkar scheme to assist cooperatives playing an important role in creation of healthcare infrastructure in the country. Domestic equity benchmarks settle around 1% higher. Sensex closes above the 40,000 mark, while the Nifty ends above the 11,850 level. And Asian markets rise amid hopes of a US fiscal package before the US presidential elections next month and expectations of a coronavirus vaccine by the end of this year. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Mantra.